वेलकम बैक दोस्तों। तो ये न्यू डेज स्टार्टेड इन सिटीज एंड ईयर्स। आयुर्वेदा डे 23rd September. The government of India announced to celebrate Ayurveda Day on 23rd September every year. 23rd September Ayurveda Day. Women's Teacher Day 3rd January. The government of Telangana announced to celebrate the birth anniversary of Savitribai Phule as Women's Teachers Day every year. World Meditation Day 21 December. The UN General Assembly announced unanimously adopted a resolution World Meditation Day co-sponsored by India. कब 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे बनाएंगे। नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर. This day was celebrated on the occasion of completion of 1 year of Namo Bharat Train operation. तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर, नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर, हैदराबाद लिबरेशन डे 17 सितंबर को ये मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू अनाउंसमेंट ऑफ द होम मिनिस्ट्री, Hyderabad Liberation Day will be celebrated in the memory of 17 September 1948 when Hyderabad was liberated from the rule of Nizam under Operation Polo. 1948 17 सितंबर 1948 की घटना है ये। संविधान हत्या दिवस 25 जून, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो 30 में द यूएन जनरल असेंबली designated 30 May as the International Day of Potato to raise awareness of multiple nutrition, economic and environmental and cultural value of the potato. बिना पोटैटो के कोई सब्जी नहीं बनती है ना। इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो 30 मई. वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 May. UN General Assembly has passed a proposal to celebrate 25 May every year as a World Football Day 25 May. Potato Day 30 May. संविधान हत्या दिवस 25 जून. हैदराबाद लिबरेशन डे 17 सितंबर. इंटरनेशनल मार्कर डे 24 मई. इंटरनेशनल मार्कर 24 मई को मनाते हैं। यूएन जनरल असेंबली अनाउंस सेलिब्रेट 24 मई नेशनल International Marker Day. Marker is known as screw-horned goat. Wild goat is the national animal of Pakistan. 24 May. World Basketball Day 21 December. The UN announced to celebrate the first World Basketball Day on 21 December 2023 to commemorate the invention of basketball by Dr. James Naismith in 1891. No non-veg day 25 November. UP government has announced to celebrate meat free day on 25 November on the occasion of the birth anniversary of Sadhu TL Vaishnavi. National Space Day 23 August. National Space Day 23 August. PM Narendra Modi announced to celebrate 23 August every year is National Space Day to commemorate the successful landing of Chandrayaan 3 on the south pole of the moon. नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाते हैं। नो नॉन वेज डे 25 नवंबर. स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस ये 28 मई को. Every year, the government of Maharashtra announced to celebrate Veer Savarkar's birth anniversary May 28 as स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस. समर्पण दिवस 11 Feb. On the occasion of the death anniversary of पंडित दीनदयाल उपाध्याय. समर्पण दिवस 11 फरवरी को. नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को. ये पूछ भी चुका है.
The month of in the month of March 2020, the Standing Committee of the National Board for Wildlife announced the celebration of National Dolphin Day on 5th October every year. The purpose of organizing this day is to raise awareness for the conservation of the dolphin species. National Dolphin Day, 5 October. Maitri Divas, 6 December. India and Bangladesh had decided to celebrate December 6 as a Maitri Day. On this day in the year 1971, India gave recognition to Bangladesh. Maitri Divas, 6 December. National Startup Day, 16 January. Seeing the continuous increase in the number of startups in India in the last 2 years, the central government announced the celebration of this day on 16 January. Parakram Divas, 23rd January. The central government has decided to celebrate the 125th birthday of Subhash Chandra Bose as a Parakram Divas. Now every year 23 January will be celebrated as Parakram Divas, 23 January. Veer Bal Divas, 26 December. Prime Minister Narendra Modi announced to celebrate 26 December every year as Veer Bal Divas to pay tribute to the four sons of the Guru Gobind Singh. 26 December. Janjatiya Gaurav Divas, 15 November. The central government has now decided to celebrate the birthday of Bhagwan Birsa Munda as Janjatiya Gaurav Divas every year. जनजातीय गौरव दिवस 15 November. पार्टीशन और रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त. Prime Minister Narendra Modi has decided to observe 14th August every year as a partition horror remembrance day as a partition of India and Pakistan took place on this day. तो पार्टीशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों. पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त. जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर. वीर बाल दिवस 26 दिसंबर. पराक्रम दिवस 23 जनवरी. नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी एंड मैत्री दिवस 6 दिसंबर. नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर. समर्पण दिवस 11 फेब. स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस 28 मई. नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त. नॉन वेज डे 25 नवंबर. वर्ल्ड बास्केटबॉल डे 21 दिसंबर. ये मैत्री दिवस 6 दिसंबर. सो ओके दोस्तों, भाई लोग आगे बढ़ते हैं. अरे तो दिख ही नहीं रहा. चलो दिखेगा. तो ये कुछ न्यू ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंटेड इन द ईयर 2025 में क्या है कि पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड PPL ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ जी हैं. पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड PPL ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ जी हैं. यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट कीर्ति सुरेश हैं. T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा हैं. एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग संजू सैमसन. हरियाणा स्टेट वुमेन्स कमीशन ब्रांड एम्बेसडर सफाली वर्मा. फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. मेंटल हेल्थ होता है तो जीविका पादुकोण आ जाती है. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंटल हेल्थ एम्बेसडर अभिनव बिंद्रा. विकसित भारत बिल्डेथन 2025 ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला है. लेवीज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है. बिहार इलेक्शन स्वीप्स आइकॉन्स नीतू चंद्रा एंड क्रांति प्रकाश झा. नमो युवा रन कैंपेन ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोमन एंड शाहरुख खान. अच्छा शाहरुख खान है जोमेटो ब्रांड एम्बेसडर. अच्छा, नमो युवा रन कैंपेन ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोनम. जोमेटो ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है.
झारखंड स्टेट टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म कैंपेन ब्रांड एम्बेसडर सना तेंदुलकर। उड़ीसा गवर्नमेंट हैंडलूम इंडस्ट्री एम्बेसडर माधुरी दीक्षित। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिटॉल कंपनी महेंद्र सिंह धोनी। एम्बेसडर ऑफ कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अनिल कुंबले। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी इंडिया नीरज चोपड़ा। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलीट कंगना रनौत। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मालदीव कैटरीना कैफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फेडरल बैंक विद्या बालन। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा मोटर्स विक्की कौशल। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया आइकॉन आयुष्मान खुराना। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्केचर्स जसप्रीत बुमराह एंड कार्तिक आर्यन। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया गेट बासमती राइस अमिताभ बच्चन। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिक्की फिल्म्स आयुष्मान खुराना। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पुमा इंडिया पीवी सिंधु। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खो खो 2025 सलमान खान। खो खो सलमान खान खो खो। अच्छा। इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर रश्मिका मंदाना। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मनु भाकर। ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश टूरिज्म पंकज त्रिपाठी। ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश टूरिज्म पंकज त्रिपाठी हैं। वाह। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ थाईलैंड टूरिज्म डिपार्टमेंट सोनी सूद हैं। तो ये था दोस्तों। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अनिल कुंबले। जोमेटो ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। नमो युवा रन कैंपेन ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोनम। विकसित भारत बिल्डेथन 2025 ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला। हरियाणा स्टेट्स वुमेन कमीशन ब्रांड एम्बेसडर सफाली वर्मा। T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। तो 18th लोकसभा देखते हैं दोस्तों एक बार अभी क्या हुआ है। द इलेक्शन ऑफ द 18th लोकसभा was announced on March 2024 and the model code of conduct came into force. And the election for the 18th Lok Sabha held in 7th phase, 7 phase में हुआ from 19 April to 1 June and result were declared on 4 July 2024. No party got a clear majority. So BJP got 240 seats. वोट जितने वोट कितना वोट का शेयर था परसेंट है वोट्स मतलब कितना टोटल वोट इनको मिला है 100% में 36.56% मिला है। सबसे ज़्यादा इन्हीं को मिला है। फिर INC कांग्रेस को मिला इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीट मिला है वो 21.19% सीट। फिर थर्ड नंबर पे 1 नंबर BJP है 3 नंबर पे समाजवादी पार्टी को मिला है 37 सीट मिला है 4.58% वोट्स को मिला है। AITC और तृणमूल कांग्रेस को 29 सीट्स मिला है और ये 4.37% के साथ DMK साउथ की ये पार्टी 22 TDP JDU को 12 से 1.5% वोट शेयर है इसका। टोटल वोटर टर्नआउट वाज 65.79% एक्सक्लूडिंग बैलेट पोस्टल बैलेट्स। Lakshadweep recorded the highest voter turnout of 84% by Assam, followed by Assam 81%. The lowest voter turnout was recorded in Bihar at 56.19%. Jammu and Kashmir it was 56.58%. The average age of the elected MPs is 56 years. Oldest MP TR Balu of DMK 83 years old. Now 83 years. A total of 74 women MPs have been elected victorious, well, which is 4 less than the 78 women MPs of the last Lok Sabha election in 2019.
216 MPs who won in the 2019 Lok Sabha elections were also elected. 46% of the MPs in the 18 Lok Sabha have criminal cases registered against them. 46% of the MPs have criminal cases. Okay. This Lok Sabha has 7 independent MPs, 24 Muslims and बुद्धिस्ट MPs में हैं भी. तो ठीक है दोस्तों, ये बीजेपी कैंडिडेट देख लेते हैं. यहाँ पे बीजेपी कैंडिडेट शंकर लालवानी गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स 12,26,751. Shankar Lalwani defeated his opponent Sanjay Solanki of BSP by the highest margin of votes 11,75,092 votes. In the year 2019, Nauta got the highest number of votes, that is 51,660 in Gopalganj, Bihar. Mukesh Dalal, BJP candidate, won the election unopposed from the Surat seat. हमारे मोदी जी जो हैं हैज़ बिकम द सेकेंड पर्सन आफ्टर पंडित नेहरू टू टेक ओथ एज प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव टाइम. नेक्स्ट पेज में चलते हैं दोस्तों हम लोग. वेरियस प्रोडक्ट्स टू रिसीव GI टैग इन द ईयर 2025. तो 16-17 डेज है दोस्तों. इसको स्लाइड को हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे. देख लेते हैं इनको, क्या है कि यार ही है इसमें करना है. वरैयार कॉटन साड़ी, वरैयार ये तमिलनाडु साइड से ही है, तमिलनाडु से है सारा. वरैयार कॉटन साड़ी, कविन धप्पी नट्टू सक्कारी ट्रेडिशनल जैगरी पाउडर, नमक्काल मक्काल पथिरंगल, सोप स्टोन कुकवेयर, थोयामल्ली राइस एंड अब अम्बासामुद्रम चोपू समन वुडन टॉयज. ये सब दिसंबर 2022 में इनको GI टैग मिला है और ये सब तमिलनाडु से. वुडन टॉयज, थोयामल्ली राइस, ये अम्बासमुद्रम चोपू समन, नमक्कल मक्कल पथिरंगल, सोप स्टोन कुकवेयर, ट्रेडिशनल जैगरी पाउडर क्या है, कविन दप्पदी नट्टू सक्कारी सक्करी सक्कारी शक्कर मतलब जैगरी टाइप. और यार कॉटन साड़ी, तो ये सब तमिलनाडु से इनको GI टैग मिला है. आंध्र प्रदेश से है पोंदुरु खादी दिसंबर 25. वेस्ट बंगाल से है मैंडारिन ऑरेंजेज दार्जिलिंग दिसंबर 25 है ना. एक बार डायग्राम भी मैं दिखाऊंगा आपको. सिक्किम तुंगबुक एंड पुमतोंग पुलित ट्रेडिशनल लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नवंबर 2025. तुंगबुक एंड पुमतुंग बिल्ट अरुणाचल प्रदेश में दाओ ब्लेड नवंबर 2025. दाओ ब्लेड अरुणाचल प्रदेश से नवंबर 25 में GI टैग मिला है. मध्य प्रदेश डायमंड पटना डिस्ट्रिक्ट नवंबर 2025. अंबाजी मार्बल नवंबर 2025. ओजो फैनी अल्कोहलिक बेवरेज जून 2025. सांगरी बीन मई 2025. केरला कन्नाडियप्पा ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट अप्रैल 2020. रानडिया सिल्क खासी हैंडलूम अप्रैल 2025. बनारसी शहनाई एंड बनारसी तबला अप्रैल 2025. उत्तर प्रदेश से मेघालय से है रिंडिया सिल्क एंड खासी हैंडलूम, खासी ट्राइब है वहाँ की और कुछ हैंडलूम बना रही है अप्रैल 2025 में. केरला से कंदीपया ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट अप्रैल 2025. सांगरी बीन मई 2025. राजस्थान से गोवा ओजो फैनी अल्कोहलिक बेवरेज जून 2025. बनारसी शहनाई अप्रैल. ठीक है. वेस्ट बंगाल से नोलेन गुरेर सैंडेस स्वीट अप्रैल 2025. तमिलनाडु से कुंभकोणम बीटल लीफ एंड थोवाली फ्लावर गार्लैंड मार्च 2025. वारंगल चपता चिल्ली टोमेटो चिल्ली मार्च 2025. सदागरी ब्लॉक प्रिंट मार्च 2025. अच्छा, गुजरात से है ये. तेलंगाना से वारंगल चपता चिल्ली टोमेटो चिल्ली
कुंभकोणम बीटा लीफ थोवली फ्लावर गार्डन मार्च। अच्छा, असम से काफ़ी चीज़ें हैं, देखो बोडो 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 से काफ़ी है। बोडो जो ग्राउंड डी राइस बियर, मैबड़ा जो बिडवी राइस बियर, बोडो जो गीसी राइस बियर, बोडो नफम फूड आइटम है। ओंडो इंडिया फूड आइटम है। बोडो गखा वखा ऐसे कुछ है। बोडो नजरी फूड आइटम। और अरुण ट्रेडिशनल जगेडी ऑफ शाम जून 2025 में इनको मिला है GI टैग। इनकी फ़ोटो भी देखेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट टाइम इसको। फिलहाल हम कुछ देख लेते हैं, दूसरी टारगेट्स हैं कुछ, है ना। अपकमिंग गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब चेंज कर लेते हैं कलर, काफ़ी देर से कलर कर अच्छा लगेगा। पीला कलर कर लो, पीला कर लेते हैं। येलो येलो में करेंगे हम इसको। तो एम टू स्टॉप यूरिया इंपोर्ट बाय 2025। सबको पता है जैसे कि 2026 आ गया है। कंट्रोल ऑफ फूड एंड माउथ डिजीज एंड ब्रुसेलोसिस इन लाइवस्टॉक एंड टारगेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द डिजीज 2030 बाय 2050 2025। ओके, टारगेट ऑफ लेइंग ऑप्टिकल फाइबर इन द विलेज का ये इसका लक्ष्य दोस्तों 25 तक है। मेक टीवी इंडिया टीवी फ्री बाय 2025 तक है। टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल इज बाय 2025। टारगेट ऑफ लिमिटिंग नक्सलिज्म बाय मार्च 2026। मेक इंडिया $1 trillion डिजिटल इकोनॉमी बाय 2027-28। टारगेट ऑफ लॉन्चिंग चंद्रयान 4 2028। टारगेट ऑफ अचीव 300 metric tons of steel capacity 2030। लॉन्चिंग चंद्रयान 4 2038। टारगेट ऑफ अचीविंग 300 metric ton of steel capacity by 2030। टारगेट ऑफ अचीविंग 100 metric tons of coal gasification 2030 तक का लक्ष्य है। अचीविंग 100% गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 तक होना है। टारगेट ऑफ अचीविंग 280 गीगावाट्स ऑफ सोलर एनर्जी बाय 2030 तक लक्ष्य है इसका। टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बाय 3 times 2030 तक लक्ष्य है। रिडक्शन ऑफ टोटल कार्बन एमिशन बाय 1 billion 2030 तक यही है लक्ष्य इसका। टारगेट ऑफ 30% टोटल व्हीकल्स बीइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल इज 2030। कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया फ्रॉम इंडिया बाय 2030 तक हटा देना है, 2030 तक गोल है। एलिमिनेटिंग एड्स ये बढ़ जाता है 2030। तो नेक्स्ट दोस्तों, इंडियन रेलवे टू अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन और ग्रीन टारगेट टू बिल्ड रेलवे इज 2030। तो टारगेट टू इस्टेब्लिश इंडिया ओन स्पेस स्टेशन बाय 2035। टारगेट टू लैंड एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून इज बाय 2040। तेलंगाना गवर्नमेंट टारगेट टू मेक्स इट्स इकोनॉमी $3 trillion 2047। टारगेट टू इंक्रीज इंडियाज न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टू 1 lakh megawatt 2047। टारगेट टू मेक इंडिया डेवलप्ड 2047। टारगेट टू रिड्यूस द यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बाय 80% 2047 तक है। टारगेट टू मेक इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट 2047 तक है। टारगेट टू अचीव सेल्फ सेंस इन शिप बिल्डिंग 2047 है। टारगेट ऑफ जीरो कार्बन एमिशंस इन मुंबई सिटी इज 2050। टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय इंडिया इज 2070। है ना दोस्तों, रिपीट कर लेते हैं एक बार। टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070। टारगेट ऑफ जीरो कार्बन एमिशन मुंबई सिटी मुंबई सिटी का 2050 तक। टारगेट टू अचीव सेल्फ सेंस इन शिप बिल्डिंग 2047। टारगेट टू मेक एनर्जी इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट 2047 तक दोस्तों। टारगेट टू रिड्यूस द यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बाय 80% 2047 है। टारगेट टू मेक इंडिया डेवलप 2047 तक है। टारगेट टू इंक्रीज इंडिया न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 1 लाख गीगा मेगावाट
मेगावाट 2047 तक है। टारगेट टू लैंड एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून बाय 2047 तक है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो ये